हेलो मेरे अजीजों, कैसे हैं आप? वेलकम, एक बार फिर आपका वेलकम है खुदा के कलाम के सुनने के लिए। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ आज कुछ नया किया जाए, है नया करते हैं। आइए एक छोटी सी नाटिका, एक इंटरव्यू, एक ऑफिस में एक इंटरव्यू हो रहा है किसी कैंडिडेट का जो आया नौकरी ढूंढने के लिए, और एक छोटा सा इंटरव्यू का एक छोटी नाटिका हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें से कुछ अच्छा लेसन या सीख आपको जरूर मिलेगा, और उसके बाद इस नाटिका को हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। Are you ready for the interview? Yes, sir. Sure, you look very nervous to me, huh? Slightly, but it's just nervousness of good preparation, sir. Good preparation. Yes. Oh, he is prepared so well. I'm so happy to meet someone who's so well prepared for an interview. Okay, without any delay, I'll ask you some. What is your name? I can't somehow in your resume. It's tough to. What's your name? What is it? Sir, my name is Fonsu Bangru. Pardon? Fonsu Bangru. Wonsu Bangru? Yeah, Fonsu Bangru. Funsuk. Onsu. Onsuk. Onsuk Bangru. What a Yes, strange name that is. Yes, sir. I've never met someone with Wonsuk Bangru. Oh, Yes, sir. that's a very tough thing. But I'm sure you'll have a nickname, Unsu or something, no? You can call me Fonsu. Unsu. Okay. Unsu, I'll ask you some questions, okay? You have to answer that who will you go to? Who will you go to when you have these issues, okay? Okay, if your bathroom is leaking, who will you go to? If my bathroom is leaking, Yes. that's the easiest answer, sir. I'll go to a carpenter. Carpenter? Yes. I mean, you'll go to a carpenter if your bathroom is leaking. Yes, sir. Carpenter. My word, it's a plumber, my dear friend. Even children know it's a plumber. Come on. Okay, sir. I have your question, sir. Yes. Very interesting question, sir. If you need forgiveness from sin, and if you want to receive salvation, whom should you go to? Salvation? Yes, sir. Forgiveness of sins? Yes, sir. Who should I go to? Yes, sir. Whom will you go to? I may go to a mountain for some meditation and for peace, or go to a river, or I'll do some good works. Like I'll help people, I'll give food to the beggars, or I'll give them warm clothes, quilts. We gave a lot of quilts. Sir, 1 second. Yes. I think you're not listening to my Some question. good works. If I do good, I will go to heaven. I No, think. sir, you're not listening to my question properly. I'm asking you, whom will you go to? I'm not saying what will you do. Huh. You're just giving me what will you do. I'm asking you whom, like you're asking me all the question, whom will you call? Whom will you call upon? Whom will you go to if you need salvation? I have no idea. I don't know. I think children also don't know about this. I've never thought about it. I'm so busy in life to make money and to make big houses and big bank balance, and I'm so concerned about my children and people around for my status and what car to buy, what house to buy. I've never thought about this. Sir, perhaps this is the most important question. I think, I don't mind, sir, if I get this job or not, but I want you to know this answer. That whom will you go to? I'm sorry, Wansuk, I don't know. Can you help me? Perhaps a lot of people like me don't know about that. Who to go to for salvation, to forgive my sins? I know I'm a sinner, everyone is a sinner, but who should I go to? Tell me. So the answer we find in Bible, and in Acts chapter 4 and verse 14, we read that salvation exists in no one else, and this no one else is no one but the Lord Jesus. Salvation exists in only Lord Jesus, for there is no other name given under this heaven to men by which we must be saved. Sir, you should definitely go to Lord Jesus. But why him? There's so many other people. Why him only? Because, sir, if you read Bible and John 14 and verse 6, he says, I am the way, the truth and the life. Only the Lord Jesus said, He is the only way, the truth and the life. Wansuk, it's an eye-opener for me this morning. I've never thought about this, who to go to for my sins to be forgiven, for my salvation, to be saved, to go to heaven. I don't know, but today you have told me, perhaps a lot of my friends here who have joined us, who have not known who to go to. Thank you, my friend, I'm so grateful. हैरान हो गए आप भी? मैं भी हैरान था कि इतना बेवकूफ इंसान
जिसको इतना भी नहीं पता कि जूता कब जब ठीक कराता है तो मोची के पास जाना पड़ता है, अगर कोई बाथरूम में कोई लीकेज है तो आदमी प्लम्बर के पास जाता है। अरे सिंपल से सिंपल चीजें कि हमें पता चलता, जब पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें ये पता है कि जब सब्जी खरीदनी होती तो हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, फल खरीदना होता तो फल वाले के पास जाते, दूध खरीदना होता है तो दूध वाले के पास जाते, अरे जब मीट खरीदना होता तो मीट वाले के पास जाते। अरे हमें ये भी पता है कि अगर हमें मैथ्स में कमजोरी है, गणित में, या कोई हिंदी में कमजोरी है तो किसके पास जाएंगे? हिंदी टीचर के पास जाएंगे, मैथ्स टीचर के पास जाएंगे। अरे अगर गाड़ी खराब होगी तो कोई मैकेनिक के पास जाएंगे, किसी कार गैराज में जाएंगे। दोस्तों हमें सब कुछ मालूम है, हमें ये पता है कहाँ जाना है, कहाँ पे क्या मिलेगा। आजकल तो गूगल में आप जो मर्जी आप रिसर्च कर लो, आपको सारे आंसर मिल जाते हैं। और ये भी पता चलता था कि रास्ता कैसे पहुंचना है, डायरेक्शन कैसे पहुंचता है। आजकल सब लोग अपने फोन पे लगे हुए, पर ये वंशुक वांगड़े एक अजीब किस्म का आदमी, जो इंटरव्यू आपने देखा, उसको कोई भी जवाब नहीं आता था, कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था उसको। मैं भी हैरान कि किसने भेज दिया उसको, किसने इंटरव्यू के लिए भेज दिया, कैसे सेलेक्ट हो गया इंटरव्यू के लिए। दोस्तों आप भी मुस्कुरा रहे होंगे, आप भी हंस रहे होंगे, मुझे खुद उसमें तरस भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी कि बेसिक सिंपल से सिंपल सवाल जो एक बच्चा भी जानने, नर्सरी का बच्चे को भी पता होगा, वो सिंपल से सिंपल सवाल उसको नहीं पता था। पर क्या कहा उसने कि सर मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उद्धार पाने के लिए कहां जाना चाहिए हमें? वेयर शुड वी गो टू गेट सैल्वेशन? दोस्तों एक बहुत अहम प्रश्न पूछ के चला गया वंशुक मेरे से, जिसको मैंने कभी सोचा नहीं। इस इंटरव्यू नाटिका में हमने यही देखा कि इंसान सारी चीजों का इल्म ले ले, सारी चीजें उसको पता चल जाए। You have taken knowledge and account of everything. आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, पूरी दुनिया क्यों ना घूम ली आपने, यू आर अ ग्लोब ट्रॉटर, दुनिया देख ली आपने बड़े बड़े डिग्रियां ले ली, बड़े आलिम फाजिल इंसान है आपकी दानिशमंदी इतनी जबरदस्त है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस है आपके पास, बड़े बड़े ओहदे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आपने काम किया है, बड़ी इज्जत है आपकी सोसाइटी में, और क्योंकि बड़ा रुतबा है आपका, बड़ा रोब है आपका, बड़ा पैसा है आपके पास, बड़े बड़े मकान है आपके पास, बड़ी बड़ी बिजनेस है आपके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास, और आपके पास इस सोसाइटी में बड़ी इज्जत क्यों ना हो, बड़ा आपकी कास्ट क्यों ना हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड से बड़ी जबरदस्त क्यों ना हो, आप राजा इंसान क्यों ना हो, पर दोस्तों आपने सब कुछ किया क्यों ना हो, आपने बहुत चीजें अचीव करी हो, बड़े अवार्ड भी क्यों ना मिले हो आपको, पर एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन कि उद्धार पाने के लिए किसके पास जाना चाहिए? किसके पास? हमारे पास सब आंसर है, हर एक चीज का आंसर है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, दूध वाला है, मोची है, नौकर है, अलग ड्राइवर है, अलग अलग लोग, अलग अलग जरूरतों के लिए हम उनके पास जाते हैं। अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग, आंखों के लिए अलग है, हार्ट के लिए अलग है, लंग्स के लिए अलग है, स्पाइन के लिए अलग है, हड्डियों का डॉक्टर अलग है, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं हम। हमें पता है किसके पास जाना चाहिए। पैसे चाहिए तो बैंकर के पास जाते हैं, बैंक वाले के पास जाते हैं। भाई हमें सब कुछ मालूम है, पर इस प्रश्न का जवाब शायद जो इंटरव्यू लेने वाला जो शख्स था, जैसे मैं जो इस नाटिका में था, कोई जवाब नहीं था मेरे पास। शायद आज शाम मेरे अजीजों आप में से भी शायद कोई ऐसे लोग हो जो सब कुछ जानते हो, पर इस अहम जिंदगी का प्रश्न, दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइफ का जवाब आपके पास ना हो। दोस्तों मैं तो जवाब आपको सिर्फ खुदा के कलाम से दे सकता हूं, क्योंकि ये जवाब
मुझे परमेश्वर के वचन से मिला, जैसे वंशुक ने बताया। और ये कहाँ पाई जाती है वर्ष? अगर आपने वो इंटरव्यू बड़े ध्यान से देखा हो, अंग्रेजी में जरूर था, पर मैं उम्मीद करता हूं आपने उसको समझा होगा। और ये वर्ष हमें प्रेरितों के काम कहाँ है? नए नियम में। नया नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम, 5वीं किताब नए नियम में और उसके 4थे अध्याय में। और हम पढ़ते हैं इसको 12वें पद में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4 एंड वर्स 12। इसमें खुदा का पवित्र आत्मा इस बात को स्पष्ट कर रहा है, एब्सोल्युटली सफाई से बता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट व्हाटसोएवर। इसमें आप ये कोई नहीं रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च पेपर बनाने पड़ेंगे, पीएचडी करनी पड़ेगी, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा, इसको हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं 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 नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये वो सच्चाई है, दिस इज दी ट्रुथ। सच्चाई ये है जो मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं आपके लिए। प्रेरितों के काम 4था अध्याय 12वां पद, वर्स 12। Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. और कोई स्वर्ग के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया जहां मनुष्य उद्धार पा सके। There is no other name given, और किसी के पास उद्धार है ही नहीं। It is absolutely crystal clear। ये एक शीशे की तरह साफ बात है कि और कोई नहीं है स्वर्ग के नीचे। भाई आसमान के नीचे सब कुछ है, तो आपको कोई ऐसी जगह मिली है जहां आसमान ना हो? है, चले जाइए चंद्रमा में, वहां भी आपको देखेगा। जहां जाओ आसमान ही आसमान है। धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आसमान ना मिले आपको। There is no place on planet Earth where you don't find a sky। और खुदा के कलाम में खुदा के पवित्र आत्मा ने बड़ी सफाई से, बड़ी क्लियरली ये चीज हमारी लिखी है, Neither is there salvation in any other, और किसी के पास उद्धार है नहीं। There is no one, no one। आप बोलोगे भाई क्या बात कर रहे हैं यार, स्वर्ग के नीचे और किसी के पास उद्धार नहीं सवाई प्रभु यीशु मसीह के? हाँ मैं सही कह रहा हूं। कैसे, क्यों? और भी तो बड़े बड़े पैगंबर आए, और बड़े बड़े फलसफे वाले लोग आए, बड़े बड़े गुरु लोग आए, बड़े बड़े अब उन्होंने किताबें लिख दी, बड़े बड़े अपने फॉलोअर्स थे, अपने चेले बना के गए, और उनके दास्तां इतिहास में है, बड़े बड़े कार्य करके गए वो लोग। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कोई संत, गुरु, महात्मा, पंडित नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सबसे पहले इस बात को गांठ बांध के इसको रख लीजिए, इस बात को, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही इज गॉड। वो परमेश्वर है जिसने धरती और आकाश को बनाया, पूरे भूमंडल को एक शब्द में रचा। वो परमेश्वर, वो जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत, वो परमेश्वर जो सनातन से सनातन तक, इटर्नल गॉड, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी, वो परमेश्वर जो ऐसी ज्योति में वास करता जहां पे कोई जा नहीं सकता, किसी ने उसको देखकर जिंदा नहीं रहा, वो जो सिंहासन में विराजमान है, जहां पे 2400 घंटे लगातार सिलसिलावार नॉन स्टॉप आराधना होती है उसकी, जो हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक में यूहन्ना ने जो देखा वो लिखा हमारे लिए, स्वर्ग की एक झलक दिखाई, आप पढ़िएगा उसको। वो परमेश्वर जो अति 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 पवित्र परमेश्वर देहधारी हुआ, इंसान बन के आया, क्यों? आपसे और मुझसे मोहब्बत करता था, करता है, बहुत मोहब्बत करता है, और इसलिए आया ताकि हम गुनहगारों को बचा सके, ताकि एक मार्ग खोल सके। हम गुनहगार जो नरक में जा रहे हैं, एक रास्ता, एक राह बन के आया, एक जिंदगी बन के आया,
एक हक बन के आया, वो एक सच्चाई बन के आया, वो एक मार्ग बन के आया, एक जीवन बन के आया, जगत की ज्योति बन के आया, वो ब्रेड ऑफ लाइफ बन के आया दोस्तों, वो जीवन की रोटी बन के आया, जीवन का जल बन के आया, वो इस अंधकार दुनिया में एक ज्योति बन के आया दोस्तों, वो एक अच्छा चरवाहा बन के आया जो अपनी भेड़ों के लिए जान देने के लिए तैयार हो गया और दे दिया उसने अपनी जान। वो पुनरुत्थान और जीवन है, वो राह, जिंदगी और हक है, वो आदि और अंत है, वो इमैनुअल है दोस्तों। वो आया और आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर उसने अपनी जान दी, वो मारा गया, उसको दफना दिया गया, उसने अपना बेशकीमत लहू हम बदकार गुनहगार लोगों के लिए बहा दिया। धर्मशास्त्र बताती है हर एक ने गुनाह किया है, कोई नेक कोई धर्मी नहीं है मेरे अजीजों, हम गुनहगार हैं, हमारा कोई वजूद नहीं उसके सामने, हम अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, हम सारे स्टैंडर्ड से हम गिरे हुए हैं, हम धार्मिकता की उसकी स्टैंडर्ड से रहित है, पाप की मजदूरी हम पे लागू है जो मृत्यु है दोस्तों। हम अपने कामों से, चाल चलन से, बातचीत से और अपनी आंखों से, सुनने से, बोलने से और अपने सोच से हम पापी हैं। ये तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि और कोई नाम नहीं है, इस नाम को अपना लीजिए, इसको ग्रहण कर लीजिए, इसको ग्रहण कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया है किसके पास जाना है आपको, पर ये आप पर है कि आप उनके पास जाएंगे ही नहीं जाएंगे। एक शख्स था वो जकई, वो जानना चाहता था प्रभु यीशु मसीह कौन है। लूका के 9वें अध्याय में इसको पढ़ सकते हैं आप। वो जानना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, बड़ा नाटा आदमी था। आप पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी खूबसूरत कहानी। वहां पे सच्चा वाक्य है, बड़ी भीड़ थी यरीहो से प्रभु यीशु मसीह, यरीहो नाम के एक शहर था, प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे। वो इतना नाटा था, इतनी भीड़ थी, देखी नहीं, वो देखना चाहता था प्रभु यीशु मसीह का मुबारक चेहरा, और उसकी बड़ी जद्दोजहद रही। अरे वो घुस ही नहीं पाया, ना नीचे ना ऊपर, कहीं से देख ही नहीं पा रहा। कहता क्या करूं, मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो हिम, मैं जानना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह कौन है, मैं उसको देखना चाहता हूं। एक सिकमोर ट्री, एक पेड़ पे चढ़ जाता वो पेड़ पे ऐसा अनुमान किया वहां प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजरेंगे, मैं ऊपर चढ़ के ऊपर से देखूंगा, टॉप एंगल से। चला गया वहां पे वो, और वहां पे बैठा हुआ पत्तों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह आए, ऊपर देख के कहते जकई आ जा, नीचे आ जा, मैं तेरे घर आऊंगा। जकई को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ, वो हक्का बक्का रह गया होगा, वो जरूर छलांग मार के खुदा के कदमों में आ गया प्रभु यीशु मसीह के, और बड़ी खुशी से अपने घर ले गया। लोग तो कहने लगे पापी इंसान है, ये तो कर लेता है, टैक्स कलेक्टर है, ये तो गलत आदमी है, पापी है, पापी। प्रभु यीशु मसीह ने एक न सुनी दूसरों की, चले गए वो, और वहां पे जकई को प्रभु यीशु मसीह मिल गए, उसको अपना उद्धारकर्ता मिल गया, उसको अपना मुक्तिदाता मिल गया, उसको एक दोस्त मिल गया। जकई की जिंदगी बदल गई, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसने आधा अपनी दौलत गरीबों में बांट दी, और मेरे अजीजों जिनसे गलत तौर से लिया था 4 गुना ज्यादा लौटा दिया। भाई उसको खजाना मिल गया, उसको प्रभु यीशु मसीह मिल गए, उसको और कुछ नहीं चाहिए था, नई जिंदगी मिल गई उसको। दोस्तों किसके पास जाएंगे? जकई तो चला गया प्रभु यीशु मसीह के पास। हाँ, बार्टिमिया जो अंधा आदमी था वो भी भागा गया, चिल्ला चिल्ला के पहुंच गया वो भी, उसको ना केवल अपनी आंखें मिल गई पर उसको एक नई जिंदगी मिल गई। दोस्तों कोढ़ी गए उसके पास, अलग अलग लोग चले गए, अलग अलग लोग, दुष्ट आत्माओं से की गिरफ्त में जो लोग थे, गुलामी में, वो लोग गए और आजाद हो गए। दोस्तों आप किसके पास जाएंगे? बाइबल तो बताती है कि एक ही है जो आपको उद्धार दे सकता है, और उसका नाम यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। आपको क्या करना है? जो जकई ने भी करा होगा, मैंने भी 11 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया। दोस्तों नो रिग्रेट कि खुदा ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपको यही कहना है, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं,
बहुत पाप किए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप मुझे बचाने के लिए आए, मैं गुनहगार, मैं आपके कदमों में गिरता हूँ, मैं सरगूर होके आपके सामने मैं बोलता हूँ, खुदावन मुझ पापी पर दया करो, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं आज आपको अपना मानता हूँ कि आप मेरे पापों की खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर आप मारे गए, आपको दफनाया गया, आप तीसरे दिन जी उठे, जिंदा स्वर्ग में गए और अब दोबारा आ रहे। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ, कुछ पापी को बचा लीजिए। मैं आज आपको अपना उद्धार करता हूँ, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी और जी उठा। किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे उद्धार पाने के लिए? Who will you go to? Who will you go to for salvation? वंशुक ने मुझसे पूछा। दोस्तों, एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आओगे उसके पास? अगर आओगे, वो कहता है जो बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मुझ पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें विश्राम और अनंत जीवन मैं दूंगा। दोस्तों, स्वर्ग के नीचे, मनुष्यों के बीच इस धरती पर और कोई नाम नहीं दिया गया जहां मनुष्य उद्धार पाए, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। आ जाओ उसके पास, आ जाओ। गॉड ब्लेस यू।